Hello students, good morning. I hope you all are good. Welcome back in our online classes. So students, today we will study chapter 8. Name of the chapter 8 is Algorithm and Flowchart. Okay. So today we will study what is the algorithm and what is the flowchart. Okay. So let's move forward and start our chapter. Chapter number 8. Okay. Start. In your daily life, you carry out certain steps in a sequential order to perform a task and get a desired result. Let us understand the above statement with the help of the example given. Okay. In your daily life, we all carry out certain steps in a sequential order. For example, when you woke up in the morning, first you go and brush your teeth. Okay. After that, you go and take a shower. After that, you get ready for the school and you come to the school. So these are the basic steps that you follow when you come in the school. Now for example, we will study the process of brushing teeth. Okay, we will study the process of brushing teeth. जब हम सुबह उठते हैं और ब्रश करते हैं तो उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप दैट वी टेक इज टेक योर ब्रश फ्रॉम द सेल्फ. ओके, फर्स्ट स्टेप क्या वो करते हैं, हम हमारा ब्रश लेते हैं ब्रश सेल्फ से. ओके, आफ्टर दैट टर्न ऑन द टैप ऑफ योर वॉश बेसिन. ओके, उसके बाद वॉश बेसिन का टैप ऑन करते हैं. ओके, थर्ड स्टेप इज रिंस द ब्रश एंड टर्न ऑफ द टैप. थर्ड स्टेप क्या है, ब्रश को रिंस करेंगे. रिंस मीन्स धोना. ओके, उसके बाद टर्न ऑफ करेंगे टैप को. फोर्थ स्टेप इज अप्लाई टूथपेस्ट ऑन द ब्रश. ओके, फोर्थ स्टेप क्या है, टूथपेस्ट अप्लाई करेंगे ब्रश पे. फिफ्थ step is start brushing your teeth. Okay, so fifth step is start brushing your teeth. Sixth step is clean the brush and rinse your mouth. Okay, sixth step is now once you clean your teeth, now you will clean your brush and then you will rinse your mouth. सेवन्थ स्टेप इज टेक योर टंग क्लीनर. ओके, अब अपनी टंग को क्लीन करेंगे. ठीक है, टंग क्लीनर लेंगे अपना और उसके बाद टंग क्लीनर लेकर टंग को क्लीन करेंगे. सो एट स्टेप इज क्लीन योर टंग. नाइन्थ इज रिंस योर माउथ अगेन एंड क्लीन योर टंग क्लीनर. माउथ रिंस वी विल रिंस आवर माउथ. आफ्टर दैट we will clean our tongue cleaner. 10th step is finally we get the desired result. And what is the desired result here? That is shiny white teeth and a clean mouth. Okay, so similarly, to solve any problems on a computer, we analyze and understand the nature of the problem. First, you plan the input and apply the appropriate methods step by step to get the desired result. ठीक है, similarly
हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम. आफ्टर दैट वी विल प्लान द इनपुट. ओके, अप्लाई करेंगे अप्रोप्रिएट मेथड्स स्टेप बाय स्टेप सो दैट वी कैन गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. This step by step procedure to solve any problem is called algorithm. Okay, so what is the algorithm, students? The step by step procedure to solve any problem is called algorithm. Okay, step by step procedure to solve any problem is called algorithm. Now move forward algorithm. Okay, I hope this is clear, students, that what is the algorithms. Step by step procedure to solve any problem is called algorithm. Okay, now algorithm, we will study algorithm. Algorithm is a set of sequential steps to solve any logical or mathematical problem. It is always written in simple language and precise manner so that anyone can understand the steps. Okay, एल्गोरिदम क्या है, एक सेट ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स है. सिक्वेंशियल मतलब कि फिक्स है कि इसके बाद यही स्टेप होगा, इसके बाद यही स्टेप होगा, सीक्वेंस चलेगा. जैसे कि हम उठेंगे तो उठ के सबसे पहले ब्रश करेंगे, ब्रश करने के बाद हम नहाने जाएंगे, नहाने के बाद हम रेडी होंगे. तो जैसे सीक्वेंस है एकदम, उसी तरह से एल्गोरिदम भी क्या है, इज अ सेट ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स टू सॉल्व एनी लॉजिकल एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम. इट इज़ ऑलवेज रिटन इन सिंपल लैंग्वेज एंड प्रिसाइज मैनर. मतलब कि एल्गोरिदम ऑलवेज सिंपल लैंग्वेज में ही लिखा जाता है और प्रिसाइज मैनर होता है. प्रिसाइज दैट मीन्स बहुत ही शॉर्ट फॉर्म होती है. ओके, बहुत ही शॉर्ट लिखा जाता है. ठीक है, ब्रीफ होता है एक तरह से, तो बहुत ही प्रिसाइज मैनर में लिखा जाता है सो दैट एनी वन कैन अंडरस्टैंड. ओके, नाउ एग्जाम्पल. सबसे पहले एग्जाम्पल हमने लिया है कि हमें एल्गोरिदम बनाना है टू सेट योर स्कूल बैग. ओके, क्या करना है, हमें एल्गोरिदम बनाना है टू सेट योर स्कूल बैग. सो इन ऑल द एल्गोरिदम्स फर्स्ट स्टेप एंड द लास्ट स्टेप इज सेम. फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट, okay, and last step is stop. okay, so in all the algorithm, आप किसी कोई भी सिचुएशन लेकर एल्गोरिदम बनाएं, जो फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप है एल्गोरिदम की वो हमेशा क्या होगी, सेम ही होगी. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट. ओके, सेकेंड स्टेप इज सी द टाइम टेबल. ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अपना स्कूल बैग को सेट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टार्ट. ओके, आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम टेबल देखेंगे कि आज कौन कौन से पीरियड्स है आपके, कौन कौन सी क्लासेस है आपके. ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट विल यू विल डू, सी द टाइम टेबल. ओके, नेक्स्ट गो टू योर बुक शेल्फ. ओके, आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, you will go to the your book shelf. okay, जहाँ पे आपकी सारी बुक्स रखी हुई हैं आप वहाँ पर जाएंगे. ओके, उसके बाद स्टेप 4, टेक आउट द बुक्स एंड नोटबुक्स अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट डेज शेड्यूल. ओके, जो भी शेड्यूल है हमारा नेक्स्ट डे का, द पीरियड दैट विल कम टुमारो, यू हैव टू टेक आउट दैट बुक्स and notebooks of that subject that period will come tomorrow. okay, after that you will keep all the books and notebooks in your bag. okay, after that what you will do, close the bag. okay, आप उसके बाद क्या करेंगे, अपने बैग को क्लोज कर देंगे. एंड सेवंथ स्टेप इज स्टॉप. जैसे कि एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट the first step
and the last step in all the algorithm is same. Okay, I hope you all understood why I have teach you. Okay, so now we will see the example 2. Okay, example 2 is about the algorithm to calculate the sum and average of 3 numbers. Okay, हमें क्या करना है, सम करना है और एवरेज निकालना है किसका, 3 नंबर्स का. ओके, 3 नंबर्स का हमें सम करना है एंड एवरेज निकालना है. ओके, तो जैसा कि मैंने कहा था, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फर्स्ट स्टेप, ओके, फर्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप इज सेम. फर्स्ट स्टेप विल बी स्टार्ट एंड लास्ट स्टेप इज स्टॉप. ओके, अब now what you have to do, first question is we have to calculate the sum of 3 numbers and average of 3 numbers. okay, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनपुट करना पड़ेगा फर्स्ट 3 नंबर्स को सबसे पहले. तो सो स्टेप 2 इज इनपुट फर्स्ट नंबर. दैट मीन्स आपको कीबोर्ड की हेल्प से जो भी आपका फर्स्ट नंबर है, आप फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू सम 5, 6 एंड 7, सो नंबर ए इज 5, नंबर बी इज 6 एंड नंबर सी इज 7. ओके, सो फर्स्ट इनपुट फर्स्ट नंबर. तो फर्स्ट नंबर इनपुट करने के लिए क्या करेंगे, हम इनपुट करेंगे फर्स्ट नंबर फॉर एग्जाम्पल 5. आफ्टर दैट स्टेप 3 इज इनपुट सेकेंड नंबर. ओके, इनपुट सेकेंड नंबर. तो सेकेंड नंबर इनपुट करेंगे. ओके, आफ्टर दैट वी विल इनपुट थर्ड नंबर. सो स्टेप 4 इज इनपुट द थर्ड नंबर. स्टेप 5, फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स a plus b plus c. ओके, we have to find the sum of 3 numbers a plus b plus c. okay, and step 6 हमें देखिए हमें क्या क्या करना है स्टूडेंट्स. फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द सम. सो सम के लिए हमने स्टेप लिख दिया है, फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स. दैट मीन्स हमें क्या कमांड देनी है कंप्यूटर को, a plus b plus c. ओके, and then after that we have to find out the average of 3 numbers. okay, so the formula of average. ओके, किसी भी जो एवरेज होता है, एवरेज निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स. ओके, सो हियर लुक एट हियर. ओके, देयर इज द सम ऑफ द फॉर्मूला ऑफ एवरेज. तो इस एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स. तो 5 का सम, 6 का सम और 7 का सम. ठीक है, तीनों का सम करेंगे और लास्ट हमारी क्या तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं हमारे पास, 3. तो डिवाइड कर देंगे हम इनके सम को 3 से. ओके, जैसे कि 4 + 6 + 7. ओके, डिवाइड बाई 3, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 3 है. ओके, सो 5 + 6 11, 11 + 7 18. ओके, सो 18 डिवाइड बाई 3. okay, so what will be the average, average will be 6. okay, average will be 6. okay, after that स्टेप 7 क्या होगी, अब कंप्यूटर क्या करेगा, पहले तो कैलकुलेशन करेगा जो भी एवरेज आएगा, उसके बाद उस एवरेज को करने के बाद क्या करेगा, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, डिजायर्ड रिजल्ट जो भी आएगा हमारा, उसको क्या करेंगे, प्रिंट भी तो करवाएंगे. तो हमारी 7th स्टेप क्या हो गई, प्रिंट. क्या हो गया 7th स्टेप, प्रिंट एवरेज. तो जो भी हमारा एवरेज आया था, कितना आया था, 6 आया था ना एवरेज. तो हमारी स्क्रीन पे क्या प्रिंट होकर आएगा, 6 आएगा. एंड आफ्टर दैट स्टेप 8 इज स्टॉप. ओके, so first and last step is the same, start and stop in all the algorithms. okay students, so this is all for today. Tomorrow we will study example 3.
Okay, algorithm to compare two numbers and find the greater number. Okay. So tomorrow we will study about the example 3, that is the third algorithm. Okay, I hope you all understood. Okay, that's all for today. Bye bye students, we will meet tomorrow. Okay.